Hello everyone, today on the special occasion of World Homeopathy Day celebrated on 10th April, we remember and pay tribute to the founder of homeopathy, Dr. Samuel Hahnemann sir, whose principles continue to guide us even today. So today we are discussing one of the most important and deep acting remedy, that is phosphorus. So let's start. Can a patient be extremely friendly, loving and open, yet at the same time extremely fearful and emotionally sensitive? Can a patient be a craving for cold water again and again, but when he drink it at the same moment he vomit it out? So I am a Shubham, and in this video we will explore the complete personality picture of homeopathy remedy, that is phosphorus. Make sure you watch the video till the end. So first we discuss the sphere of action. It is a polychrist and deep acting remedy. So it acts at every tissues in a body, but especially it acts on the spinal cord, nerves, skin and mucous membrane. The constitution. Patient is tall, thin, slender and with narrow chest. Thermal reaction is chilly, but it desire for cold food and cold drinks because there is a burning in stomach. So they desire for cold drink, but when he drink the cold food and cold drink, when it become hot after, they can vomit it out. First, it is one of the trials of burner of Nash. So there is a burning along the spine which is present in phosphorus. So other remedies, that is arsenic and sulfur. In arsenic there is a burning pain which is relieved by heat. In sulfur there is a burning which is present everywhere. Patient is very oversensitive to light touch and odor and thunderstorm. Hair falls out in bunches. The patient is restless as well. So let's see the rubrics. First rubric is magnetize, desire to be. So what is magnet? Magnet is a substance which attract other thing. So magnet ऐसी चीज़ होती है जो दूसरी वस्तु को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है. सेम इसी तरह ये जो पेशेंट होता है फॉस्फोरस का, वो सामने वाले इंसान से जुड़ने की कोशिश करता है, जिसे हम चिपकू इंसान बोलते हैं ना, वो वही होता है, सबसे जुड़ने की कोशिश करता है. उसके पीछे उसका उद्देश्य ये होता है कि वो अपना काम निकालना चाहता है. सो इसलिए वो सबसे बनाकर रखता है कि जिससे वो कभी ना कभी तो उसके काम आ जाए. इसलिए वो सबसे फ्रेंडली होके बात करता है, सबसे जुड़ने की कोशिश करता है. सो ये उसका एक पाखंड है. सो ही इज़ आल्सो इन ए मैनिपुलेटिव इन नेचर आल्सो. सो वो अपनी बातों में सबको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, जिससे कि वो सबसे जुड़ सके और सब उसकी बातों में आ जाए. सो ही इज़ आल्सो ए मैनिपुलेटिव इन नेचर. हिपोक्रेटिक में भी आता है पेशेंट, वो ज़्यादा हिपोक्रेटिक होता है, जिसे हम पाखंडी बोलते हैं. पाखंडी का मतलब होता है कि वो अंदर से तो कुछ और होता है और बाहर से कुछ और दिखाता है. सो पेशेंट इज़ आल्सो हिपोक्रेटिक इन नेचर. सो ये जो पेशेंट होता है ना, एक्चुअली में डिफ्यूज़न वाली पर्सनालिटी होती है. कि डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है कि हमने क्लास 10th 11th में पढ़ा हुआ है कि डिफ्यूज़न की जो डेफिनेशन होता है कि जो ऐसी जो गैसेस के लिए हम उसका यूज़ करते हैं कि जो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाती है, तो उसे हम डिफ्यूज़न बोलते हैं. तो इसमें डिफ्यूज़न का मतलब होता है कि जो पेशेंट होता है ना, वो कहीं पर भी जाकर घुल मिल जाता है, तो उसको हम डिफ्यूज़न बोलते हैं. ये किसी भी अजनबी इंसान से बात कर लेगा, क्योंकि उसको तो अपना मतलब निकालना ही होता है ना, तो ये कहीं पर भी जाकर घुल मिल जाता है. सो ही इज़ बट इफ़ यू फाइंड इन ए सिंथेसिस ही इज़ रिजर्व्ड इन नेचर आल्सो. सो it is contradictory in nature. So maybe it is found in extroverted or introverted, both the personality you find the phosphorus. So second rubric is affectionate. So स्नेह, वो स्नेह दिखाने की कोशिश करता है. वो क्यों करता है कि वो अफेक्शनेट इसलिए करता है क्योंकि उसको प्यार मिल सके, उसमें वो किसेस और केयर्स करता है. सो हिपोक्रेटिक में हम 3 रेमेडी ले सकते हैं मेनली: फॉस्फोरस, लाइकोपोडियम एंड सल्फर. सो फॉस्फोरस की जो पाखंडीपन होता है, उसमें हम एक रूब्रिक आता है ब्रदरहुड सेंसेशन ऑफ. वो सभी को भाई मानता है, वो सबसे अच्छे से बातें करता है, बहुत अच्छे से सभी से प्यार प्रेम भाव से रहता है और अच्छे से बातें करता है, तो सब लोग उसकी तरफ इससे जुड़े रहते हैं.
पर जब काम आने पर वो भाग जाता है, तो ये उसका हिपोक्रेटिक नेचर होता है। और सेकंड में आ जाएंगी हमारी लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का उसमें एक रूब्रिक है फिशिंग एटीट्यूड ऑफ, है ना। तो वो क्या करता है कि जब आपसे तो बहुत सारे वादे कर लेता है कि आपको कभी भी ज़रूरत हो तो मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, पर जब हम उसे फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन उठाता नहीं है, या फ़ोन करके झूठ बोल देता है कि मैं कहीं और हूँ तो इसलिए मैं नहीं आ सकता। सो बिकॉज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की कोशिश करता है। देन सल्फ़र मेनली ऑक्यूपाइड रहता है विद पॉलिटिक्स से, तो इसलिए वो भी वन ऑफ द हिपोक्रेटिक नेचर का होता है। सो देन थर्ड रूब्रिक इज़ डेल्यूजन वेल्थ ऑफ नॉवल ही इज़। सो इसका मतलब है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा नॉवल मानता है, कि उसको लगता है कि उसको सब कुछ पता है ना। तो ये इस रूब्रिक का मतलब है, पर एक्चुअल में उसको पता नहीं होता, है ना। देन फोर्थ रूब्रिक इज डेल्यूजन ग्रेट पर्सन ही इज़। इसका मतलब भी वही होता है ना, टॉक्स ऑफ बिजनेस। सो इसका मतलब है कि जो पेशेंट होता है ना, हमेशा बिजनेस के बारे में बातें करता रहता है। तो बिज़नेस का मतलब वही नहीं होता कि बिज़नेस की बातें करना। इसका मतलब है अगर पेशेंट आपके पास आता है तो वो किस तरह से अपने बिज़नेस के बारे में बात करेगा। तो वो ऐसे बोलेगा कि सर, डॉक्टर सर, कि मैं कितने दिनों में ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, टाइम बता दो मुझे कितने टाइम तक मैं ठीक होऊंगा, इसमें कितने पैसे लग जाएंगे। तो ये सब टॉकिंग अबाउट बिजनेस, है ना। देन एडल्ट्रस में भी आता है ये जो पेशेंट होता है ना, मेनली जो पेशेंट होता है ना, वो बहुत सारी बातें छुपाता है ना, बहुत सारी, और आप हमको दिखाता है कि सारी बात बता चुका होता है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये बहुत सारी बातें छुपाता है। इंटेलिजेंट रीज़न पावर इंक्रीज ऑफ, है ना। हर चीज़ का ये पेशेंट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, और रीज़न पावर इंक्रीज ऑफ इसका मतलब है कि हर चीज़ का ये रीज़न देता है। अगर कोई पेशेंट अगर आता है आपके पास, तो अगर हम पूछते हैं कि आप कैसे आए हमारे पास, कोई कहीं से आप रेफरेंस लेकर आए, तो ये बोलता है कि मैं तो बाहर से ऐसे ही जा रहा था, तो मैंने आपका पोस्टर देखा, तो उसमें बहुत सारी बीमारियां थी, तो उसमें से एक ये सारी जो बीमारियां हैं, या एक बीमारी मुझे भी है, तो मैंने सोचा कि एक बार दिखाकर आ जाता हूँ, है ना, तो इसलिए मैं आ गया। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, है ना। ये वैसे वो ज़्यादा हिपोक्रेटिक भी नेचर का भी होता है, और कभी कभार डिसीटफुल भी होता है ना। तो ये सारी बातें पता लगा कर आता है, फिर ये आपके पास आता है। या ऐसे भी हो सकता है कि बहुत सारी जगह से ये दिखा कर आता है ना, फिर आपके पास आता है। जब उसको आराम नहीं मिलता तो लास्ट में ये आप होम्योपैथी में ही आता है। तो इसका मतलब ये है। डेल्यूजन ही इज़ ऑन डिस्टेंट आइलैंड, है ना। डिस्टेंट आइलैंड का मतलब है कि ये एक ऐसे आइलैंड में जो आप इसको लगता है कि ये एक बहुत दूर वाले आइलैंड में जहाँ पर कोई भी नहीं है ना, बिकॉज इसको हमेशा कंपनी चाहिए होती, कंपनी के बिना ये रह नहीं सकता, इसको अकेले रहने में डर लगता है। तो एंग्विश एक ऐसा रूब्रिक है दैट इज़ एंग्विशेस व्हेन ही इज़ अलोन, है ना, फियर ऑफ बीइंग अलोन, है ना। इसको अकेले रहने में डर लगता है या इसको पसंद नहीं है। जब वो अकेला रहता है तो उसको गुस्सा भी आता है। क्लियरिटी ऑफ माइंड चिल ड्यूरिंग, है ना, विपरीत जो कंडीशन होती है ना, उसमें भी अपना दिमाग शांत करके रहता है, इसका ये मतलब है। क्लियरिटी ऑफ द माइंड चिल ड्यूरिंग। एक रूब्रिक है क्यूरियस वांट्स टू नो द ट्रेनिंग ऑफ द फिजिशियन, है ना। इसका मतलब है कि पेशेंट होता है ना, वो ज़्यादा जिज्ञासु रहता है कि ना, कि पेशेंट की ट्रेनिंग के बारे में। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, अगर पेशेंट आपके पास आता है और ये बोलता है कि सर आप कितने टाइम से इस क्लिनिक को चला रहे हो, या आपको कितने साल हो गए पेशेंट को देखते देखते, या ऐसे भी बोल सकता है कि ये जो बीमारी मैं लेकर आया हूँ, क्या ऐसा ही पेशेंट आप पहले भी देख चुके हो। तो इसका मतलब ये होता है। तो क्यूरियस वांट्स टू नो द ट्रेनिंग ऑफ फिजिशियन, इसका मतलब ये है। सो ये जो पेशेंट होता है ना, इसमें क्या चीज़ देखने को दो मेन रूब्रिक होता है, एक तो परसिवेरेंस और लाइट डिज़ायर फॉर, है ना। इसको ये होता है कि अगर आप इसको लाइट डिज़ायर का मतलब होता है कि लाइट दिखाना ना, जब कोई अंधेरे में होते हैं तो अगर आप कोई चीज़ अगर आप पर लाइट डाल देते हैं तो हम वो चीज़ हमें अंधेरे में दिख जाती है। तो ऐसे ही अगर इसको रूब्रिक के फॉर्म में लेंगे तो पेशेंट के नज़रिए से देखेंगे तो इसका मतलब है कि आप उसको एक बार लाइट दिखा दो, है ना। तो लाइट का मतलब है कि अगर आपने
ये आपके पास अगर आता है, अगर आपने इसको एक ऐसी मेडिसिन दी और उसको अगर थोड़ा बहुत भी फ़र्क पड़ गया तो वो आपके पास हमेशा ही आता रहेगा। तो इसका मतलब है कि लाइट डाल दो, फिर आपसे जुड़ जाएगा बहुत लंबे समय तक। तो 2 रूब्रिक है, लाइट, डिज़ायर फॉर, है ना? आप उसको थोड़ा-सा ठीक कर दो। और परसिवेरेंस का मतलब है कि ये आपसे हमेशा ही जुड़ जाएगा। तो इसमें 2 रेमेडी आती है, एकोनाइट एंड फास्फोरस। सो दोनों में ये होता है ना? लाइट, डिज़ायर फॉर एंड परसिवेरेंस, है ना? सो रूब्रिक इज़ कम्युनिकेटिव, है ना? कम्युनिकेटिव का मतलब होता है, क्या होता है? कम्युनिकेटिव मतलब होता है कि कम्युनिकेशन, है ना? कम्युनिकेशन में क्या होता है कि संवाद करना। उसमें क्या होता है कि सामने वाले को हम बात इस तरीके से रखें कि सामने वाले को समझ में आ जाए। तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन। तो ये पेशेंट बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव होता है कि अपनी बातों को पूरी तरीके से बताने की कोशिश करेगा डॉक्टर सर को, है ना? कि सामने वाले को समझ में आ जाए मेरी बात। तो वो किस तरीके से समझाएगा? वो एक्सप्रेशन से समझा सकता है, बाय जेस्चर से समझा सकता है, बाय पोस्चर से समझा सकता है, अलग-अलग एक्सप्रेशन से समझा सकता है कि सामने वाले को समझ में आ जाए ये वाली बात, है ना? तो सारी बातों को सामने वाले को पूरी तरीके से समझ में आ जाए, जिससे उसको अच्छा इलाज मिल सके, है ना? कम्युनिकेटिव इसका मतलब है। एंजाइटी डार्क इन, है ना? और लाइट डिज़ायर फॉर, है ना? दोनों रूब्रिक हैं। तो एंजाइटी डार्क इन, डार्क मतलब क्या होता है? अंधेरा। अंधेरे का मतलब होता है जब हमें कुछ दिखाई नहीं देता तो उसको घबराहट होने लग जाती है। जब सब चीज़ जब जब उसके ऐसी चीज़ जो वो जानता ना हो, तो वो ऐसी अगर कंडीशन इसके पास इसके साथ हो जाए तो फिर इसको एंजाइटी होने लग कम्युनिकेटिव रूब्रिक को एक्टिंग करके समझाता हूँ ना। जैसे कि एक पेशेंट आता है, वो बोलता है कि सर, डॉक्टर सर, मुझे कैटरेक्ट हो चुका है। तो वो सीधे भी तो बोल सकता है कि मुझे लेफ्ट आई में कैटरेक्ट हुआ है, पर वो एक्सप्रेशन से बताने की कोशिश करेगा जिससे सामने वाले को पूरी तरीके से समझ में आ जाए, है ना? कि सर मुझे ना मोतियाबिंद हो चुका है इस आँख में, देखो लेफ्ट आई में। जब मैं कोई भी चीज़ देखता हूँ तो मुझे ना सामने वाली जो चीज़ होती है ना, बिल्कुल एकदम काला सा बिंदु सा जैसे नज़र आता है। सर देखो ना, एक बार मेरी आँखों में देखो, टॉर्च लगा के देखो, मुझे तो लगता है कि सर ये जो बीच वाली आँख में बिल्कुल एकदम सफ़ेद सा हो चुका है, एकदम सफ़ेद सा, एकदम एकदम सफ़ेद सा, कि सर मुझे, मैं कुछ हो तो नहीं गया ना, मुझे सामने वाली चीज़ बिल्कुल नहीं दिखाई देती। जैसे कि मैं इस किताब को देख रहा हूँ तो पास से तो दिखाई देता है, पर जैसे जैसे दूर दूर ले जाऊँ ना तो मुझे बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता। देखो ना सर, देखो, ऐसे पास ले जाओ तो थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, पर जैसे जैसे दूर 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 बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता, है ना? सर देखो ना क्या हो गया मुझे, देखो ना। ये होता है रूब्रिक का मतलब कम्युनिकेटिव, समझे? का एक रूब्रिक है टेलीविजन वेल्थ ऑफ वेल्थ। उसके लिए क्या होते हैं, वो उसके कॉन्टैक्ट होते हैं ना। तो वो बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट बना कर रखता है कि कौन किस वक्त काम आ जाए ना। जैसे कि उसकी अगर दिल की धड़कनें बढ़ जाती है तो वो एक डॉक्टर से पूछता है, उससे लाइट मिल जाती है तो फिर दूसरे डॉक्टर से पूछता है, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पाँचवें, है ना? ऐसे बहुत सारे डॉक्टर से बना कर रखता है कौन किस वक्त काम आ जाए। तो ये उसके
वो उसकी वेल्थ है ना, वेल्थ का मतलब है उसके लिए कॉन्टैक्ट है सारे कि कौन किस वक्त काम आ जाए ना, कोई उसका सगा नहीं होता, सबसे वो काम के चक्कर में ही सबसे बना कर रखता है, तो वो उसकी वेल्थ है। वैसे ही सल्फर की वेल्थ क्या होती है, जैसे कि मैं एक्टिंग करके बताता हूँ ना, वो भी उसमें आता है डेल्यूजन वेल्थ ऑफ। जैसे कि पेशेंट को दांतों में दर्द होता है, वो आता है कि सर मेरे दांतों में दर्द है और सब ठीक है, हमारे घर में सब कुछ ठीक है ना, हमारे पास तो प्रॉपर्टी है, यहाँ पर है, शिमला में भी है और मनाली में भी है, राजस्थान में भी है, हर जगह 5-6 प्रॉपर्टी हमने खरीद रखी है, ज़मीन है, जायदाद है, कार है, सभी बेटे काम कर रहे हैं, मेरा बेटा तो इंजीनियर है, बड़ा वाला छोटा वाला डॉक्टर है, और तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है, बड़े बड़े घरों में शादी हो चुकी है, सब ठीक है सब, बस यही दिक्कत है। भाई क्या, मैं तो आपकी दिक्कत के बारे में पूछा, आप तो अपनी वेल्थ बताने लग गए। तो सल्फर के लिए वेल्थ होती है उसकी प्रॉपर्टी, उसके पास क्या क्या चीज़ है वो उसको शो करता है ना। सो नेक्स्ट रूब्रिक इज इन फॉस्फोरस, दैट इज अलर्ट मूवमेंट ऑफ एवरी डॉक्टर ऑफ, है ना। जो पेशेंट होता है ना वो ये वैसे बच्चों के लिए हम बोल सकते हैं कि जो पेशेंट होता है ना, जो पेशेंट आता है फॉस्फोरस में, जैसे बच्चा आया, तो वो जो भी डॉक्टर जो भी हरकतें करता है तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट होता है। वैसे बच्चा हर चीज़ को देखता है कि डॉक्टर क्या चीज़ उठा रहा है, क्या चीज़ रख रहा है ना। तो इसमें ये रूब्रिक आता है अलर्ट movement of every doctor of. So friend, this was a simple and practical understanding of the remedy phosphorus. So on the occasion of World Homeopathy Day, let's once again gratitude to a Dr. Samuel Hahnemann, who is the founder of homeopathy, whose principles and visions continue to guide us a true healing. So on the occasion of World Homeopathy Day, let's once again a gratitude to a Dr. Samuel Hahnemann sir, whose principles and visions continue to guide us a true healing. So let's carry forward his legacies by practicing homeopathy with deeper understanding, sincerity and compensation. So please like, share and subscribe to the channel, and do let me know in the comment section which remedy would you like to learn next. And thank you and happy World Homeopathy Day.